afternoon, everyone. Hope you guys are doing well. So let's start today's class. Ma'am will be your instructor for today and trainer. I'll just brief you about Stu-Willy technology. Then ma'am will start with our today's class. Okay, give me a second. So Stu-Willy Technology Private Limited has a successful track record in the field of academia, research, training, recruitment, and job assistance since its inception in 2018. We also offer training internship for all levels of professional world. It starts from plus two level to a seasoned professional. We in Stu-Willy Technology emphasize academic and research development as no civilization can survive without education and can't progress without research. So we work with each applicant to prepare them for employment ready. As Stu-Willy Technology bridge the gap between employer and employee via industry product specific selection and pre-employment training. Just for a quick look, I'm just sharing my screen. Just give me a minute and I'll just brief you about what Stu-Willy family holds. A second. Is my screen visible, right? Yes. Okay. So for learning and teaching platform, we have Prayug.com. For internship and training program, we have Studentern.com. For professional resume builder, we have ResumeMotion.com. For searching job nearby your location, we have Navrojan.com. And for education, like searching universities and colleges nearby your location, we have Vidapam.com. And we have like for test, psychometric test, we have Sadaksar.com. For research, we have Anushtram.com. So these are the unique services which Stu-Willy family holds. From here, I'll just hand over to Amanat ma'am. Ma'am, please continue from here. Ma'am, your voice is not audible. Now I am audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you, Sita ma'am. Thank you. Hello everyone, how are you? Guys, Hello, at least- ma'am. Yes, response guys. Make this session more interacting. Okay? You should ask question, you should respond me also as well as. Okay, so before getting start today's session, I want to know how many students know basic Excel at least. How many students are familiar with Excel? Kunal, Rishikesh, Shorab, Ujwal, Prince, Rajan. Okay. And what about other student? Okay. Sai Swami, Bhaskar. Okay. So guys, now you down your hand and जिन स्टूडेंट्स को बेसिक भी नहीं पता, दे आर नॉट फैमिलियर विद बेसिक एक्सेल, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्सेल, नाउ guys you raise your hand. They don't know anything about Excel. Anjali, Nishant. And what about you other students? Swati, Ithena, Bhuana, Uday. What about you guys? Prince, Harshita. You know Excel or you don't know? I know basics and Ma'am, I know basic Excel. Okay, Prince. Okay. So I think many of you are familiar with basic Excel and many of you are don't know anything about Excel. So we start from very basic and we will cover basic to advanced Excel. Okay, in our this session, in our this training. So okay. So how many students know how to open Excel in this system? कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पता ही नहीं कि एक्सेल ओपन कैसे करते हैं?
I know basic plus advanced, Vishrut Verma. Okay. Good. Good, Vishrut. ओके कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको एक्सेल ओपन करना नहीं आता अपने सिस्टम में? सबके सिस्टम में एक्सेल है? जिनके सिस्टम में भी, अगर किसी सिंगल स्टूडेंट के सिस्टम में भी एक्सेल अवेलेबल नहीं है, सो प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए अगर किसी के सिस्टम में एक्सेल अवेलेबल नहीं। अंजलि, ओके, सो अंजलि, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डाउनलोड एक्सेल इन योर सिस्टम, okay, from Microsoft Office, okay, because Excel is your Microsoft Office product. Okay, so now I start with very basic. First of all, we will see how we will open Excel in our system. Okay, now I will share my screen. Just a minute. My screen is visible to everyone? Yes or Yes, no? Yes, ma'am. ma'am. Okay. So now I close this file for a minute. Close all the files. So जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता एक्सेल को ओपन कैसे करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए है, आपके पास ये सर्च बार है नीचे, यहाँ पर आके आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है एक्सेल मैनुअली। अब आपको यहाँ टॉप में और आपके राइट हैंड साइड में, अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी एक्सेल अवेलेबल है तो कुछ ऐसा आपका स्क्रीन होगा, ऐसा विंडो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। राइट क्लिक ऑन योर एक्सेल ऐप. Now you are able to see. If you do not have any idea where is your Excel file located in your system, so this is the location of your file, Excel file. Open file location. यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में अगर Excel अवेलेबल है तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर आपको लोकेशन चेक करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। सेकंड, अगर आपके सिस्टम में एक्सेल अवेलेबल है and you want to open it, so simply double click on it. Okay, this open dialog box is visible to everyone, I think, right? So double click on it, your Excel will open in your system. And one more thing I want to tell you, always pin your Excel on your taskbar. I already pin it on my taskbar, so that's why it is easy to use. So from here, you pin your Excel to your taskbar. That is very helpful for you, everyone. Okay. So now if I double click on this open dialog box, so my new Excel file is open in front of us. So this is the first screen of your Excel. It depends on version to version. For many of you, maybe direct blank workbook will be open. And for many students, this welcome screen is available to your screen, right? Okay, tell me how many students implement side by side along with me? Unmute yourself and let me know how many students implement with me. Anjali, Rishikesh, Ma'am, done. Kunal, Bhuana, Aman, Nishant, Jitender. Okay, good. Whenever I teach you anything in this training, so always implement side by side. Okay, जिससे क्या होगा कि अगर आप बैठ के देख रहे हो स्टूडेंट, तो आपको क्या होगा, सिर्फ आपको लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, बट जब आप उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करोगे उसका, उस टॉपिक का, तो मे बी यू स्टक समवेयर, राइट? आपको काफी इश्यूज फेस करने होंगे जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करोगे, बट देखने पर सब कुछ इजी लगता है। इट इज ट्रू और फॉल्स? True, ma'am. Yes. So that's why always practice side by side. So this is your first screen of your Excel. So here Excel offer us many free templates. That is one blank workbook. If you want blank workbook, you want to create manually anything, so always go with this blank workbook. Now we have welcome to Excel. If we want to take a tour of our Excel, so that is the welcome to Excel file.
कुछ फॉर्मूला ट्यूटोरियल आपको एक्सेल ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफर किया है. पावर क्वेरी ट्यूटोरियल, यू नो पावर क्वेरी इज very powerful tool in your advanced Excel. So that's why Microsoft offer us Power Query tutorial also at free of cost. Provide table tutorial, and if you want to more templates, so click on these more templates and you see how many free templates Excel offer us at free of cost. Then if we are come in our left hand side, so here are some tabs. Home tab, new tab. If you want new files, so click on this new file, and if any file is already present in your Excel, in your system, already present in your system, and you want to open it, so from where you open it, click on this open tab. फिर आपको क्या होगा, आपका जितना भी एक्सेल फाइल आपके सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपके पास हर एक का एक्सेस होगा. वहां से आप जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है, विच वन यू वांट टू ओपन, double click on it, it will be open in your Excel directly. Okay, then save. If you want to save file in your system, if you do any calculation, any transformation in your Excel file, and at the end you want to save it in your system, so from where you save it, under file tab we have these options, save and save as. If you want to save it in at your desired location, if you want to save it at desktop, so save, when you click on this save as, this type of window is come on your screen. अब यहाँ से आप जहां पर भी अपनी फाइल को, you want to save in documents, you want to save in desktop, and you want to save anywhere in your system, so choose according to your requirement. Now I think it's clear to everyone कि आप existing फाइल को open कहाँ से कर सकते हैं, save आपको फाइल को कहाँ से करना है. Under file tab we have these options. Whenever this भी आपको इनका रिक्वायरमेंट हो, तो आप यहाँ फाइल टैब के अंदर ये ऑप्शंस, ओपन फाइल का, न्यू फाइल का, सेव एज, आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप इनको यूज कर सकते हैं. देन अगर आप डाउनवर्ड देखें तो मेरे पास कुछ रिसेंट फाइल्स का आपको लिस्ट दिखेगा, बिकॉज मेरे सिस्टम में ऑलरेडी, मेरे एक्सेल में रिसेंटली ये फाइल ओपन हुआ है. तो जो भी आपका रिसेंट फाइल्स होगा, 1 मंथ और 15 डेज का आपका जितना भी रिसेंट का फाइल्स होगा, वो आपको सारा ऐसे दिखेगा आपके कैनवस के अंदर. क्लियर? फर्स्ट स्क्रीन. नाउ वी वांट blank workbook. Double click on it. This is the first screen of your Excel where we work. This is the spreadsheet of your Excel. इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेल की स्प्रेडशीट. अब एक्सेल की स्प्रेडशीट से पहले इसके बारे में हम डीप में डिस्कस बाद में करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो व्हाट इज एक्सेल, व्हाई वी यूज इट, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ एक्सेल, व्हाई वी यूज इट. यस गाइस? To save the data. Maintain the records of an organization. ओके, any institute. जब भी लिसन कि जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम एंड देन स्टार्ट डिफाइन योर क्वेश्चन. ओके Yeah, my name is Bhaskar. ओके Yeah, the Excel is used to maintain the records of any organization. We can यस create dashboards by using some formulas, functions, raising pivot tables, sorts, etc. Yes, We can easily identify what are the trends, and we can visualize the data by using the Excel also. yes, very Yeah. good. Okay, anyone else? To perform some arithmetic operation also, in that for we can know some sales data, like Yes, which month we have to analyze. We can Yes. analyze our data also. yeah, right. So that is the use of Excel, right? Now I show you one PDF also. First of all, before start our today's module, I want to show you what we cover in this internship cum training program. Okay, which topic we are going to cover. So I show you this brochure to you all. First of all, personalizing Excel.
तो व्हाट इज पर्सनलाइजिंग एक्सेल? कि अगर आपके सिस्टम में you don't know how we open Excel, what is Excel, so that is about personalizing Excel in your system. Then we have filtering and sorting, that is very important. According to, if you are working in any organization, filtering and sorting is very important for everyone. If you are using Excel, so filtering and sorting is must. Then flash fill and data validation, understanding of some use basic functions of Excel, text function, arithmetic functions, formatting, time and date function, logical analysis, lookup functions, and some advanced lookup function also we covered in this training come internship program. Pivot tables, slicer and charts, with the help of, at the end, with the help of slicers and charts, we will create one dynamic dashboard also in this program, in this training. Okay, then power query, macros and VBA, what is the use of macros in today's industry. Then in more details, if you want to know what is personalizing Excel, what is filtering and sorting, so this is the brochure for your training. Now tell me what is your expectation from this training? Yeah, hi. Yes, Bhaskar. I I think that they said we will assign you assignments based on that. You will work on it. We will provide some Bhaskar, you internship. are not clear to me. Can you speak little bit loud? They said we will assign some assignments to you and we will guide throughout the internship and we'll provide the internship certificate. Is there any providence of assignments like from the first week itself? Okay. Okay, Bhaskar, we will try to fulfill your all the conditions. Okay. 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 So how So, many days it will take for the Excel basics to look up functions? sorry. How many days it will take for complete the basics of Excel? For complete this training, almost 3 months. 3 months. Okay. Because at the end, we will do one project. Okay. Okay. What is about the live classes every day or by weekly once? In a week, 2 days. Oh, oh, So, in our today's session, we cover what is Excel, what is the benefits of Excel, and how we customize quick access toolbar. What is the use, what is the requirement of quick access toolbar in Excel, and some shortcuts. Okay, because if we are talking about एक्सेल एक्सपर्ट, सो शॉर्टकट इज मस्ट. अगर आप किसी भी, अगर आपको मैं बोलूं कि आई एम एक्सेल एक्सपर्ट, तो आपका मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मैम माउस यूज ही ना करे, राइट? कीबोर्ड से सारा काम करे, राइट? हर किसी का यही एक माइंड में फिक्स है. अगर मैं किसी, अगर अगर आप सुनते हैं कि दैट इज ही और शी इज एक्सेल एक्सपर्ट, तो हमें लगता है कि उसको सब कुछ आता है, उसको माउस का नीड ही नहीं है, वो सब कुछ शॉर्टकट की हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से कर सकता है. So whenever we talk about any Excel expert, so your shortcut is must. I don't say कि आप सबको याद रखो, बट अगर आप उन चीजों के को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लेते हो, फ्रीक्वेंटली आप उनको डे टू डे अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो, तो वो आपका हैबिट बन जाता है. और उसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हैं, आप अपने काम को, जहां आपको 5 मिनट देना होता है, वहां उसको आप एटलीस्ट 2 मिनट में कर सकते हो with the help of shortcuts, if you know some advanced shortcuts. So my first question is, what is Excel? So as Bhaskar told us कि Microsoft Excel में क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं. किसी स्टूडेंट ने बताया कि हम वहां पर क्या करते हैं, अर्थमेटिक फंक्शन यूज करते हैं. सो दैट इज नॉट द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज एक्सेल, तो आप उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको देना होगा. अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो उसका डेफिनेशन
Hello, ma'am. Hello. God. Ma'am, you are not audible. Guys, I think she is facing some network issue. Just wait for a second. Hello, I am audible. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry, Yes, ma'am. sorry everyone for unwanted disturbance due to network issue. I will lose. Okay, so we will start again. Guys, make me confirm if my screen is visible to you. Okay. No. Now my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. It's visible. Okay. तो हम कहाँ पर थे जब मेरा नेटवर्क इशू हुआ था उस टाइम पर? We are Definition of Microsoft. okay. So we will start again from Microsoft Excel definition. So Microsoft Excel is a powerful spreadsheet program that allows users to organize, manipulate, and analyze data. It is widely used in various fields such as business, finance, education, and for research also. And it will help us task to solve ranging from simple calculations to complex data analysis. अगर इसको मैं जनरल लैंग्वेज में आपको अगर हम बेसिक लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो व्हाट इज ऑर्गेनाइज अगर आप मैं आपको एक्सेल स्क्रीन दिखाती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज अगर मैं यहाँ पर कुछ पुट कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 तो वो कैसे उसका एंट्री हो रहा है रो बाय रो विद इन ए कॉलम यस तो वो क्या है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उसका ऐसा नहीं है अगर आप वर्ड में अगर कुछ टाइप करते हैं आप नोटपैड में कुछ टाइप करते हैं तो वहां पर आपके पास ना रो है ना कॉलम है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आपका वो होगा तो दैट्स व्हाई वी से ऑर्गेनाइज डाटा देन मैनिपुलेट व्हाट इज मैनिपुलेशन अगर जब भी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एट योर एक्सेल सो इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोफाइल तो वहां पर क्या होता है कि क्लाइंट आपको क्लीन डाटा रेयर चांस होता है कि आपको क्लाइंट से क्लीन डाटा मिलेगा हमेशा आपको डाटा को क्या करना होगा क्लीन करना होगा ऑन योर ओन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट सो जो चेंजेस हम वहां पर करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे डाटा में 10,000 रो है but out of 10,000 row we have 5 blank rows so what you have need to do first of all we will remove 5 blank values from our data yes that is known as manipulation if we have any extra column or if we have requirement for any other column so जो कैलकुलेशन वहां पर उस टाइम पर उस कॉलम के लिए हम करेंगे उन हर चेंजेस को हम क्या कहते हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं हम डाटा को हम किसके साथ चेंजेस कर रहे हैं डाटा में चेंजेस कर रहे हैं तो वो डाटा में क्या कर रहे हैं हम उस टाइम पे मैनिपुलेशन इजी लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं ओके देन एनालाइज अब मैंने कहा कि वी हैव 10,000 रो बट आउट ऑफ 10,000 रो वी हैव 5 ब्लैंक रोज सो हाउ यू विल नो
कि आपके 10,000 रोज में 5 ब्लैंक रोज हैं? कैसे पता चलेगा? जब तक आप उस डाटा को एक्सप्लोर नहीं करोगे। यस, कुछ फंक्शंस, कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से हम अपने डाटा को क्या करते हैं? चेक करते हैं। उस चेकिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एक्सेल लैंग्वेज में? एनालाइज द डाटा। सो तीनों टर्म्स क्लियर है? ऑर्गेनाइज, मैनिपुलेट एंड एनालाइज। दैट इज क्लियर टू एवरीवन? देन Yes. अब आपको इतना तो, अब आपने इस ट्रेनिंग में आपने यहाँ पर इनरोलमेंट किया है, तो आई थिंक यू आर अवेयर एंड यू मस्ट नो द freedom of your Excel, functionality of your Excel and demand of your Excel in today's industry. अगर मैं बात करूं डाटा एनालिस्ट की, वन ऑफ माय फ्रेंड जस्ट 1 month बिफोर उसका जॉब प्लेस हुआ है एक MNC में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल ओनली। उसका सारा इंटरव्यू ही किस पर डिपेंड था? एक्सेल पर। सो एक्सेल इज मस्ट इन एवरी IT कंपनी. If you are interested in data jobs, so you should know Excel. Okay? So अगर आप किसी भी फील्ड की बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि if you are in pharmacy department, if you are in medical field, if you are in business, or if you are in finance, education, तो Excel का सबको नीड है। अगर आप स्कूल में भी जॉब करते हैं तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा? वहां पर भी Excel का रिक्वायरमेंट होता है। डाटा का जो जितना भी इंफॉर्मेशन आपका स्टूडेंट का होता है वो कहाँ स्टोर होता है? एक्सेल में, राइट? तो आपके हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड की बात करें, सो योर एक्सेल इज मस्ट इन टूडेज इंडस्ट्री। थर्ड, उसका बेनिफिट क्या है कि आप 5 + 5 = 10, इसको भी एक्सेल में आप यूज, एक्सेल की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट इफ यू हैव सम ह्यूज डाटा, सो उसको भी आप, उसके लिए भी आप कैपेबल है कि आप उस डाटा को एक्सेल में एनालाइज कर पाए, कैलकुलेट कर पाए अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट्स। सो दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेफिनेशन। जब भी इंटरव्यूअर पूछे व्हाट इज एक्सेल, सो टेल हिम और हर कि दैट इज वन स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड अलाउ करता है हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के। अभी मैंने पूछा तो किसी ने, स्टूडेंट ने आंसर किया कि हम वहां पर अर्थमेटिक फंक्शन यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ योर एक्सेल। अर्थमेटिक फंक्शन एवरीवन नो कि वहां पर हम सम फंक्शन यूज करते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, बट आपको इंप्रेसिव वे में उसको बताना कि व्हाट इज एक्सेल। आपको उसका बेनिफिट्स बताना होगा उसको, ताकि उसको वो सोच सके कि हाउ मच योर एक्सेल इज पावरफुल। So that's about your Excel definition. Now we will move towards our next question. What is the benefit of Excel? Why we will use Excel? Here are some points. Best way to store data. जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम एक्सेल में अगर मैनुअली हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, या हमारे पास वर्ड पैड से हमारे पास क्लाइंट ने शेयर किया वर्ड फाइल, उसको मैंने ओपन किया अपने एक्सेल में, तो वहां पर भी मेरा एक क्या होगा? एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो बेस्ट वे टू स्टोर डाटा, कोई भी उसको इजीली एनालाइज कर सकता है, इजीली समझ सकता है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज ऑल्सो फॉर न्यू यूजर ऑल्सो। देन यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस, जैसा कि मैंने बताया कि आप 5 + 5 भी एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हो, और आपके पास कोई ह्यूज क्वांटिटी है तो उसको भी आप सिंपल बेसिक कैलकुलेशन से लेकर आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तक एक्सेल में क्या हो? कैपेबल हो हर टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। देन टूल है, वी नो एक्सेल इज वन टूल। कैसा टूल है? टूल फॉर डाटा एनालिसिस। जो कैलकुलेशन हम वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं उसको अगर आप IT टर्म्स में जाने तो उसको हम क्या कर रहे हैं? डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं, ओके, एक्सप्लोर कर रहे हैं डाटा को डीप में। देन फोर्थ, इजी टू डाटा विजुअलाइजेशन विद चार्ट। अगर आप विजुअलाइजेशन की मैं बात करूं तो आप कैपेबल है, आपके पास स्लाइसर्स है, आपके पास चार्ट्स है, वैरायटी ऑफ चार्ट्स यू हैव इन योर एक्सेल, सो यू आर एबल टू यूज दीज चार्ट्स also in your basic, in your normal Excel. हर कंपनी का प्रायोरिटी अगर आप बात करें तो हर कंपनी का प्रायोरिटी क्या होता है कि अगर उनका
डाटा ह्यूज नहीं है, बिकॉज वी हैव वन लिमिटेशन इन एक्सेल। एक्सेल में हम सिर्फ लिमिटेड डाटा को ही क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डैशबोर्ड में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमारे पास होना क्या चाहिए, एक लिमिटेड डाटा अगर हमारे पास है तो उसी को ही हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक डैशबोर्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर्स, एंड वी हैव वैरायटी ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल। बट अगर आपके पास ह्यूज डाटा है, so we are not capable to make dashboard in our Excel, because Excel में हम only 1 million डाटा को ही at a time अगर आपको डाटा स्प्लिट करना है तो आप मल्टीपल टाइम्स उसको कर सकते हैं, बट एट ए टाइम हम क्या कर सकते हैं, वी हैव लिमिटेड डाटा। 10 लाख रोज का डाटा है, तो अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है तो आपकी कंपनी का प्रायोरिटी क्या होगा, स्टार्टअप है या इंटरमीडिएट लेवल पर आपकी कंपनी है, तो उनका प्रायोरिटी होगा कि वो एक्सेल के साथ ही क्या करेंगे, अपने डाटा को एनालाइज करेंगे। अगर डाटा ह्यूज है तो वो विजुअलाइजेशन पार्ट के लिए किस में मूव करते हैं, पावर बीआई और किसी अनदर विजुअलाइजेशन टूल। आज की इंडस्ट्री पे हमारे पास वेरियस विजुअलाइजेशन टूल है, वी हैव पावर बीआई, वी हैव टैबल्यू, वी हैव क्यूलिक नाउ, राइट? बट इफ वी हैव लिमिटेड डाटा, so we are able to make one visualization in Excel itself. Then you can print reports easily. Print reports easily से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि अगर आपका मैनेजर है, मल्टीपल ब्रांचेस है उसका, वो विद इन ए वीक आपके ऑफिस में आते हैं एक बार, बट वो आए, उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, जहां तक भी हमारे प्रोजेक्ट का काम हुआ है मुझे उसका रिपोर्ट चाहिए, तो आप सबसे इजीएस्ट वे क्या है, सबसे इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे है कि आप एक्सेल में रिपोर्ट क्रिएट करके उन्हें शो कर सकते हो। दैट इज वन सिंपल वे टू शो योर रिपोर्ट टू योर मैनेजर और योर सीनियर। within 5 minutes you are able to make reports in your Excel if you know advanced Excel concepts. Then जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्क्रीन पर ही दिखाया, यू हैव सो मैनी फ्री टेम्पलेट्स टू यूज एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कोड टू ऑटोमेट, आजकल सबको पता है, सबको कोई भी 2 मिनट का वेट करना नहीं चाहता। अगर मैं आपसे बोलूं कि गाइस 2 मिनट वेट करो, तो आप क्या सोचोगे, अरे यार कैसी ट्रेनिंग है, कैसी मेंटोर है, वेट करा रही है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सबको है कि मेरा 2 मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, फोन चला के खराब कर देंगे बट वेट नहीं करेंगे किसी का। यस यस और नो, है ना आज के टाइम में ये कि हर चीज में हमको क्या चाहिए, एक फास्ट अप्रोच हमको चाहिए, कि जहां पे हमारा काम 10, पहले हम जनरल ट्रेन यूज करते थे, बट अब जहां पर मेट्रो अवेलेबल है, अगर आपके पास जनरल ट्रेन का ऑप्शन है और मेट्रो का ऑप्शन है, तो आप किसको प्रेफर करोगे, मेट्रो को करोगे, राइट? क्योंकि मेट्रो आपको क्या दे रहा है, ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है एज कंपेयर टू योर जनरल ट्रेन। तो कोड टू ऑटोमेट भी कुछ ऐसा ही है आपका। कोड टू ऑटोमेट आपका आता है जब हम पावर क्वेरी सीखेंगे। सो एट द एंड इन दिस ट्रेनिंग वी विल आल्सो कवर पावर क्वेरी कॉन्सेप्ट, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे डाटा में डायनामिक अपडेट, अगर हमारा डाटा बैकएंड से हमारा डाटा सोर्स क्या हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे डैशबोर्ड में कैसे रिफ्लेक्ट हो, दैट इज द पार्ट ऑफ योर ऑटोमेशन। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डाटा। एक्सेल का सबसे मेन बेनिफिट क्या है, हम वहां पर डाटा को ट्रांसफॉर्म, उसका प्रायोरिटी ये है, अगर कोई कंपनी उसको यूज कर रही है, मे बी वो विजुअलाइजेशन के लिए उसको यूज ना करे, बट एनालिसिस के लिए हर कंपनी डिपेंड है एक्सेल पर। सो ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। इफ एनीवन हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टिल हियर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। Clear. Everything is clear? Yes, Yes. ma'am. No doubts. Yes, Okay. ma'am. No doubts. ओके गुड। सेकंड, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, अगर आपको मेरा जो टीचिंग मेथड है, अगर आपको लग रहा है कि मैम फास्ट करा रही है, स्लो करा रही है, तो आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने टीचिंग पैटर्न में भी चेंज करेंगे। सो प्लीज कैन यू मेक मी कंफर्म कि हमारा जो
टीचिंग मेथड है वो सही है या वी हैव नीड टू स्लो डाउन? Good, ma'am. Good. I'm teaching English, ma'am. Okay, so Tamilan, we are using bilingual language because we have all types of students there. They know Hindi, some students know English. So that's why we are using bilingual language, okay? Okay, ma'am. Then quick access toolbar. Anyone have any idea what is quick access toolbar? जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि how many students know basic Excel? So almost 10 to 15 students ने hand raise किया था कि we know basic Excel. So let me know what is quick access toolbar. Yes, Yes, Saurabh? in spreadsheet, the top of the side, there is a toolbar there. So we Yes. can access from there. Yes. So what is the use of it? Like, for example, we have to give the filtering option. So Yes. the filtering option is there. We have Yes. to add some spreadsheets, a new Yes. spreadsheet. There is one option also for applying new spreadsheet option there. Yes, you are right. So that is so okay. Now I tell you one definition for quick access toolbar. So quick access toolbar, customization. Customization का सबको पता है. अगर मैं गर्ल्स का या फिर बॉयज का बात करूं, अगर आपको किसी शादी में जाना है तो आपको क्या करोगे, आप अपनी ड्रेसेस को कस्टमाइज कराते हो. आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना कि ब्राइड और ग्रूम सेम कलर का आउटफिट सिलेक्ट करते हैं. सो दैट्स अबाउट कस्टमाइजेशन कि हमने अपनी अकॉर्डिंग उस चीज को कस्टमाइज कराया कि वी वांट दिस पैटर्न इन पिंक कलर, वी वांट दिस शूज इन ब्राउन कलर. सो दैट इज नोन एज कस्टमाइजेशन. सो क्विक एक्सेस टूलबार भी कुछ ऐसा ही है. तो यूजर्स कैन कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूलबार बाय एडिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स. फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स कौन सा होता है? कंट्रोल सी. हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो व्हाट इज कंट्रोल सी शॉर्टकट? Where we use control C? For copy. 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 Yes. Copy. Control V, Paste. We need to paste. Yes. pasting. तो सबको पता है because we are using frequently in our day to day life. Yes, everyone will be using. तो उन जो कमांड्स हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उन कमांड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स, including those not found on the ribbon. This allows for quick access to commands without navigating through multiple tabs. I show you practically. So that is your screen of your Excel, जहां पर हम अपने डाटा को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे. अब सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया था, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्सेल, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रीफ इंट्रो मैं दे देती हूँ स्क्रीन का. सो अगर आप अपनी फर्स्ट लेयर की बात करें, दिस ग्रीन लेयर, तो यहाँ पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको सेक्शन दिख रहा है, दैट इज योर क्विक एक्सेस टूल बार. व्हाट इज दिस? दैट इज योर क्विक एक्सेस टूल बार. इस ड्रॉप डाउन आइकन पर जब मैंने इसको एक्टिव किया तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर है सभी को एक नेम के साथ. उसमें क्या है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार. सो दैट इज योर क्विक एक्सेस टूलबार. दैट इज योर फर्स्ट लेयर. ओके, देन इन योर सेकंड लेयर यू हैव रिबन. इस सेकंड व्हाइट लेयर को हम क्या बोलते हैं? रिबन ऑफ एक्सेल. अब इस रिबन के अंदर आपके पास मल्टीपल टैब्स है. यू हैव functionality of multiple tabs. Under file tab you already see what is this name. अगर आपको किसी न्यू वर्कबुक आपको चाहिए, आपको फाइल को सेव करना है, और you want to open any existing Excel file, or you want to save at your desired location, so all these options are available in your file tab. Okay, then under home tab we have multiple options. One by one we explore every tab. Home tab, insert, page layout, formulas, data, review, view, help. Total we have 8 to 9 tabs in our ribbon. So we will explore in our upcoming classes one by one every tab. Then this
in this third layer, we have this small box. What is this, guys? If you, in your third layer on your left hand side, this, what is this? This small box. ये क्या represent करता है? Address of cell. Address of your cell. Address of your cell. See, if I am in this cell, so वहां पर क्या आपको मेंशन करा है? G7. मतलब कि जो मेरा रेंज है वो कौन सा एक्टिव है अभी मेरे एक्सेल के अंदर? अगर मैं कुछ टाइप कर रही हूँ तो वो कहाँ होगा? In G7 cell, because G7 is my active cell now. अगर मैं रेंज सिलेक्ट करूं इंस्टेड ऑफ सेल, तो वहां से वो आपको क्या दिखा रहा है कि आपका रेंज स्टार्ट कहाँ से हुआ है? फ्रॉम G7. इफ आई एम हेयर एंड आई सिलेक्ट द रेंज वंस अगेन, सो इसका रेंज आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है? C2 से. तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम आइडेंटिफिकेशन हमको देता है कि वी आर ऑन विच सेल. अभी मैं कहूं F5 में. F5, व्हाट इज F5? जिनको नहीं पता वो बताएंगे, जिनको पता है वो चुप रहेंगे, जिनको कुछ भी नहीं पता, अगर उनको नहीं पता तो आप अनम्यूट कीजिए और पूछिए, क्वेश्चन पूछिए. What is this F5? How we will make cell in the Excel? What is cell? Okay, so I tell you this thing. So this is your name box. नेम बॉक्स आपका वो लोकेशन आपको दिखाता है जो आपका एक्टिव होता है आपकी सीट के अंदर. सेकंड, जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं 1 2 3, ये क्या है? ये आपकी रो है, एक्सेल रो है आपकी. क्या है? एक्सेल रो. और जो ABCD अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं वो क्या है? आपके कॉलम. तो अभी अगर मैं यहाँ पर हूं तो जो ये आपको स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज अ सेल इन योर एक्सेल. टोटल 3 चीजें आपके स्प्रेडशीट के अंदर होती है. रो फर्स्ट, सेकंड कॉलम, थर्ड सेल. सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर रो एंड कॉलम. अगर अभी मैं इस सेल में हूं तो आपका डाउट होगा कि मैम कैसे ये कॉम्बिनेशन है रो और कॉलम का. तो अगर आप नेम बॉक्स में चेक करें योर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड इन योर थर्ड लेयर, तो ये क्या है? G5. अब G5 क्या है? सेल है, बट ये कॉम्बिनेशन कैसे है? सो सी, G मेरा कॉलम है और 5 मेरा रो नंबर है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम क्या क्रिएट करता है? एक सेल क्रिएट करता है, एक यूनिक प्लेस वो क्रिएट करता है. G5 अगर मैं यहाँ पर हूं तो यहाँ पर G5 नहीं है. क्या है यहाँ पर? C6, बिकॉज C इज माई कॉलम नेम एंड 6 इज माई रो नंबर. सो जब अगर आपको किसी सेल का आइडेंटिफिकेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉलम नेम और उसमें ऐड करना है रो नंबर. तो कॉलम नेम मेरा C है और रो नंबर मेरा 6 है. सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एज C6 एज एन माई सेल आइडेंटिफिकेशन. Now it is clear to everyone what is row, what is column, and what is cell in your Excel. Yes. Okay. So we will come back in our third layer. तो लेफ्ट हैंड साइड का तो हमने डिस्कस कर लिया कि नेम बॉक्स है. नेम बॉक्स का यूज भी हमने देख लिया कि वो हमें लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन हमको दे रहा है कि जो भी हमारा एक्टिव सेल है हमारी स्प्रेडशीट के अंदर. बट व्हाट इज दिस ऑन आवर राइट हैंड साइड? दैट इज अवर फॉर्मूला बार. अगर आप कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी सिंगल कैलकुलेशन आप परफॉर्म करते हैं अपने एक्सेल फाइल के अंदर, जस्ट अ मिनट गाइस. सो फॉर्मूला बार में क्या होता है? जब भी आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते तो वो कैलकुलेशन या ऑलरेडी आपकी सीट, आपके पास डाटा है ऑलरेडी, उस सीट पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रखे, कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके डाटा में हो रखे, तो आप कहाँ पे चेक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई परफॉर्म हेयर वन फॉर्मूला, नो नीड टू वरी, हम इसको सबको कवर करेंगे. बट अभी मैं आपको दिखाने के लिए क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ. इज इक्वल, सॉरी, सिक्स.
मैंने ये कहाँ पे कैलकुलेशन किया? अपने F2 के अंदर। अगर आप नेम बॉक्स चेक करें तो कहाँ पर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया? इन F2। बट जब मैंने F2 को, मेरा एक्टिव सेल है, तो ये दिख क्या मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया? अगर मैं यहाँ पर हूं तो आपको पता चल रहा है कि ये 6 यहाँ पर हो सकता है कि 6 मैंने मैनुअली टाइप कर दिया हो। यस, you have no idea, but if you make it active, so it will show you कि which calculation you are perform। वो आपको दिखा देगा आपके फॉर्मूला बार के अंदर कि आपके इस सेल में फॉर्मूला अप्लाई हुआ है और इस सेल में आपकी क्या है, ये मैनुअल एंट्री है। मैनुअली आपने क्या किया है, 6 को टाइप किया है यहाँ पर। क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मूला बार एंड व्हाट इज द यूज ऑफ नेम बॉक्स? Yes, sir. फिर ये हो गया आपका स्प्रेडशीट का सारा डिस्कशन, जो आपका थर्ड लेयर के बाद आता है। फिर एट द एंड हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्थ लेयर है। तो फोर्थ लेयर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, स्क्रॉल टू द फर्स्ट सीट ऑल सिलेक्ट्स सीट ऐड करने के, अगर आपको न्यू सीट ऐड करनी है विद इन वन वर्कबुक यू वांट मल्टीपल सीट, यू हैव सेल्स डाटा। अब सेल्स डाटा में आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा, यू जिस प्रोडक्ट का आप सेल कर रहे हैं उसका आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, जो ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही हैं वो डाटा आपके पास होगा, ट्रांजैक्शन डाटा। जहां आपके ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, जो डाटा, जो प्रोडक्ट्स आपके रिटर्न्स हो रहे हैं, तो यू हैव मल्टीपल सीट्स फॉर दैट डाटा। यू हैव जियोग्राफी डाटा, यू हैव ट्रांजैक्शन डाटा, यू हैव प्रोडक्ट डाटा। तो उसके लिए आपको क्या होगा, वर्कबुक तो एक है सेल्स डाटा, बट विद इन ए वर्कबुक वी हैव मल्टीपल सीट्स। So from where we add these multiple seats, this plus icon is visible to everyone. Click on it and rename it according to your requirement. Rename कैसे करेंगे? Right click on your dialog box. This type of small pop-up is come on your screen. Rename your sheet with the help of this rename option. Okay? If you want to delete, so simply delete it. सबको अब स्क्रीन के बारे में सब फैमिलियर, सबको पता है कि व्हाट इज इन दिस फर्स्ट एक्सेल स्प्रेडशीट शीट। अब हम बात कर रहे थे क्विक एक्सेस टूल बार की। सो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे प्रेजेंट है, सबको पता है, अभी फर्स्ट लेयर में एक्सेल की। अब मैंने कहा कस्टमाइज, अब कस्टमाइज करना मैंने क्या बताया कि हम अपनी इच्छा से वहां पर उसमें कुछ चेंजेस कर सके। बट मेरे क्विक एक्सेस टूल बार में क्या है, कट है, कट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। पेस्ट है, न्यू फाइल है, ओपन फाइल है, फिल्टरिंग है। बट आई वांट अनदर थिंग्स, मैं इनको यूज नहीं करती। आई वांट कंट्रोल प्लस सी इन माय क्विक एक्सेस टूलबार। सो हाउ वी विल कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट? सो यू हैव दिस स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन, क्लिक ऑन इट। कुछ कमांड्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अब कुछ कमांड्स के आगे आपको चेक बॉक्स विजिबल है, कुछ के आगे नहीं है। जिनके आगे नहीं है इसका मतलब ये कमांड आपके क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड नहीं है। बट ओपन मेरा क्या है, मेरे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सेव प्रेजेंट है, अंडू रीडू का ऑप्शन है। बट इफ आई वांट टू ऐड दिस शॉर्ट असेंडिंग इन माय क्विक एक्सेस टूल बार, मेरे पास सेल्स का डाटा होता है, मुझे एट द एंड अपनी सेल्स में चेक करना होता है कि मेरी जो आज की हाईएस्ट सेल हुई है वो कितना हुआ है। तो वो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, मैं सिंपली क्या करूंगी, अपने डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर, सबने पढ़ा है थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में व्हाट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जब हम डिसेंडिंग उस पर वो मुझे टॉप में अपीयर होगा। तो अब मुझे मेरा एक शॉप है, उसमें मैं डेली प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ और एट 5 PM मुझे वहां पे चेक करना होता है, क्योंकि मेरा क्लोजिंग टाइम क्या है 5 PM। मुझे 5 PM पे चेक करना होता है कि आज का मेरा हाईएस्ट सेल कितना हुआ। तो मुझे उसके लिए डेली क्या यूज करना पड़ता है, मुझे अपने डाटा पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करना होता है डेली फ्रिक्वेंटली। तो वहां पे मैं क्या करूंगी, तो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल होगा कि मैं इस डिसेंडिंग को अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लूं।
जो मेरे लिए क्या होगा, इजी टू यूज होगा। मुझे मल्टीपल टैब्स एक्सप्लोर ना करके मुझे क्या करना होगा, सिंपली वन क्लिक करना होगा अपने क्विक एक्सेस टूल बार में सॉर्ट डिसेंडिंग आइकन पे, और मेरा डाटा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। यस अब मे बी आपका रिक्वायरमेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग का ना हो, ये मैंने अपने लिए एक यूज केस बताया। यू आर लुकिंग फॉर एनी अदर कमांड्स, सो क्लिक ऑन दिस मोर कमांड। अब आपको ये दिख रहा है, आपके पास 2 बॉक्सेस है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में सारे जितनी भी कमांड एक्सेल ने आपको ऑफर की है वो सारी प्रेजेंट है, और आपके राइट हैंड साइड में सिर्फ वो कमांड्स अवेलेबल हैं जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। सो इफ यू वांट टू एनीथिंग एल्स, so from where you add, if you want format cells, or tell me if you want anything, if you want copy, if you want email, if you want delete sheet column। मुझे मेरे पास डाटा आता है क्लाइंट से, उसमें अनवांटेड कॉलम्स बहुत होते हैं, तो मुझे बार बार राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करके फिर मैं क्या कर पाती हूँ, उस कॉलम को डिलीट कर पाती हूँ। तो अगर मुझे वो सिंगल टैब की हेल्प से करना है तो मैं कैसे करूंगी, डिलीट शीट कॉलम कमांड को सिलेक्ट करूंगी। आपको दोनों बॉक्स के बीच में एक स्मॉल बॉक्स विजिबल है विद द नेम ऑफ ऐड इट। अब आपके क्या है, आपके राइट हैंड साइड टेबल में भी आपको ये कमांड विजिबल है, बिकॉज हमने वहां से उसको सिलेक्ट किया है अपनी लेफ्ट हैंड साइड टेबल से। नाउ सिंपली क्लिक ऑन दिस ओके। अगर अब आप यहाँ पे अपने क्विक एक्सेस टूल बार में चेक करें तो ये कमांड आपका यहाँ से क्या हो गया है, ऐड हो गया है। अगर अब आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, इफ आई वांट टू डिलीट दिस एफ कॉलम, तो अगर आपके पास एक कमांड नहीं है तो आपको क्या करना होगा, मैन्युअली सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा, देन राइट क्लिक, देन डिलीट योर कॉलम। बट इफ यू ऐड दिस डिलीट शीट कॉलम, सो सिंपली सिलेक्ट योर कॉलम एंड डिलीट इट। आपका एफ कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। एफ कॉलम डिलीट होने से मतलब, अब आप सोचोगे एफ नाम तो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर, आपका जो इन अल्फाबेट नंबर्स हैं ये आपके हमेशा सीक्वेंस में रहेंगे, बट यहाँ से आपका डाटा जो आपके एफ कॉलम में डाटा था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो हमने कितने टैब यूज किए, सिंपल 2 टैब, एक कॉलम सिलेक्शन के लिए और दूसरा डिलीशन के लिए। बट इफ वी डू नॉट नो अबाउट दिस quick access toolbar, so we have need to use multiple tabs. First of all, select it, right click on it, select it, right click, then again delete it, then you are able to delete your single column from your file। और फ्यूचर में फिर से आपको चाहिए तो फिर से आपको ये 2-3 टैब्स को एक्सप्लोर करना होगा पहले। yes, so that is the use of quick access toolbar, and that's how you customize it according to your own requirement। Now we will back to our PDF। so quick access toolbar का पता चल गया आपको कि what is the use of quick access toolbar। अब सेकंड है built in commands। built in commands, जो commands वहां पर आपकी क्या है, ऐड है। फॉर एग्जाम्पल the quick, अगर कोई आपसे पूछे what is built-in commands in quick access toolbar, so what is the definition for that? The quick access toolbar includes a set of commonly used commands such as save, undo, redo, and print. Users can easily add or remove commands according to their preference। Then adding commands, कि commands को हम कैसे ऐड करते हैं। To add a command to the quick access toolbar, users can right click or click on your drop down icon on any command in the ribbon and select add to quick access toolbar। Alternate way क्या है, they can click on the drop down arrow at the end of the quick access toolbar section and choose more command option from this pop-up to select from a wider range of option। वहां पे आपके पास क्या, एक वाइड रेंज था ऑप्शंस का, मल्टीपल कमांड्स आपके पास थी, जो भी आपको रिक्वायर है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और अपने बिल्ट इन कमांड में आप उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यस, देन our next topic and last also, that is keyboard shortcut।
So in Excel, a keyboard shortcut is a combination of keystroke. For example, Control plus A. That is a combination of two key, Control plus A, that allows user to perform tasks more efficiently without having to navigate through menu or use the mouse. अब इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, कुछ एडवांस, कुछ नेविगेशन कीज मैं आपको कवर कराऊंगी हमारे नेक्स्ट सेशन में. आप खुद से कहेंगे यस मैम दैट इज हेल्पफुल फॉर अस. कुछ कीज है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी, जिनको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज आवर टुडेज टाइम इज ओवर. इट्स ऑलरेडी 3:31. So if anyone have any doubt regarding today's session, so please unmute yourself and let me know. Now I will stop my screen. Yes, Rishikesh, you are right. Control plus minus can also be used to remove column. Rishikesh, I tell you one thing. Control plus minus is not only for remove column. Control plus minus is knowing for what? अगर आपने कोई भी रेंज, कोई भी सिलेक्शन आपने क्रिएट किया है अपने एक्सेल के अंदर में और यू प्रेस कंट्रोल माइनस, सो आपका वो सिलेक्शन क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, चाहे वो आपका कॉलम है या फिर हम बात करें रो की. तो कंट्रोल प्लस माइनस इज नोन फॉर डिलीशन, नॉट फॉर रिमूविंग कॉलम. So everything is clear to everyone? No doubt till here? Okay. So bye everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Most Thank you, welcome. Thank you, ma'am. And the ma'am, next session will be? आपका काउंसलर आपको बता देंगे, जैसा भी ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले. ओके Okay. Okay, ma'am.